morning students, how are you? I hope you will be fine. Students, have you studied up to chapter 3? Have you cleared all the chapter? Have you understood the chapter? I hope that you have understood very clearly. So the previous chapter is about the landforms, major landforms of Earth. Like major landforms like mountains, plateaus, hills, deserts, rivers, and its importance that you have already read in the previous chapter, and I hope that you have understood that chapter very clearly. So today I am moving to our new chapter, that is chapter 4, natural resource. Before going to describe the new chapter of our natural resources, I am going to describe you about the resources. What is resources? The first point is strike in your mind, that is resources. What is resources? That I am going to tell you. Resources something which satisfies the needs of the human beings. Resource is something which satisfies the needs of the human beings. What is resource? Resource means, resource को हम कहते क्या हैं? रिसोर्स को हम संसाधन कहते हैं. रिसोर्सेज वो चीज है जो हमारी सेटिस्फैक्शन को, हमारी संतुष्टि को पूरा करता है. मीन जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करता है, जो हमारी डेली बेसिस में हमको चाहिए होता है उनको पूरा करता है. लाइक इफ वी आर थर्स्टी, if we are thirsty, what we will use? Obviously, we will use water to drink. So, water is our need. वाटर हमारी ज़रूरत है. जब हम प्यासे होंगे तो हम क्या करेंगे? क्या पिएंगे? पानी ही तो पिएंगे. तो पानी हमारी क्या है? एक ज़रूरत है, हमारी जो हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है. सो वाटर इज अ नीड, इज सेटिस्फाई अवर थर्स्ट, हमारी प्यास को बुझाता है. तो जब तक हमारी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं करती. ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. इट मीन्स कि वो पानी, वो वाटर हमारी नीड है जो हमारी प्यास की ज़रूरत को, हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकती है. नेचर हैज गिफ्टेड अस विथ मेनी रिसोर्सेज. Children, do you know that nature has gifted us with many resources like sunlight, water, petroleum, air. ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, जो हमारी डेली बेसिस पे हमको नीड होती है, ज़रूरत होती है. क्या बिना पानी के आप रह सकते हो? नो. विदाउट एयर आप रह सकते हो? नो. नॉट अ सिंगल डे यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड विदाउट एयर. So these are our needs which satisfy our things, whatever we need. Like we are thirsty, we are using water. If what we are just breathing, we are getting oxygen. We are getting oxygen. Without oxygen we can't live. तो ये हमारी सब ज़रूरतें हैं जिनको हमको चाहिए, और ये रोज़ की ज़रूरतें, डेली बेसिस की नीड है हमारी जो हमको चाहिए. Now I hope that you understood about what is resources. Now I am moving to the next point, that is what is natural resources. What is natural resources? That I am going to tell you. The resources
which we get directly from nature is known as natural resources. What is natural resources? The resources which we get directly from nature is known as natural resources. जो संसाधन हमको प्रकृति की तरफ से डायरेक्टली मिलती है, मीन्स गिफ्टेड होती है नेचर की तरफ से, वो कहलाती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम ह्यूमन नहीं बना सकते, इसको तो हमको नेचर से ही मिलता है। एंड नेचर गिफ्टेड टू अस, और उसको संभाल के रखने का काम किसका है? हमारा है। हमको उसको सेव करके रखना है, अननेसेसरी उसको यूज नहीं करना है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which we get directly from our nature and it is gifted to us. Now natural resources can be divided into two. What are these points? That I am going to tell you. First is renewable resources, and another one is non-renewable resources. First is renewable resources and another one is non-renewable resources. Now first of all I am going to discuss about what is renewable resources. Renewable, re means, what is the meaning of re, children? Re means again and again, again and again. So the meaning of these resources is that those resources which can be used again and again. These resources can never get exhausted. What is the meaning of exhausted? Finished. ये वो resources हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, और ये कभी फिनिश नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, खत्म नहीं होता। These are unlimited. ये हमें नेचर की तरफ से अनलिमिटेड मिला हुआ है, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल. We consume air, sunlight in our daily needs. So like soil, water, air, sunlight, these are important things for us. ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमको डेली चाहिए, इनके बिना हम नहीं रह सकते. Like sunlight, this energy obtained direct from the sun is called solar energy. What is called solar energy? The energy, वो एनर्जी जो हमको सन से डायरेक्टली मिलती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी. What is air? Air, it is an important inexhaustible natural resource. Air, air जो है ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते और ये फिनिश नहीं होती है. अभी मैंने बताया रिन्यूएबल रिसोर्स में री मीन्स अगेन एंड अगेन, जो हमको बार बार मिल जाती है, कभी भी फिनिश नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होती है. वैसे ही एयर उस रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है. इट इज एन इम्पोर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ को सर्वाइव, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बिना एयर के क्या हम रह सकते हैं? अगर ये रूम को हम पूरी तरीके से लॉक कर दें और हवा को हम बिल्कुल आने ही ना दें, ना बाहर जाए ना अंदर आए, तो क्या होगा? हम
सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम एयर पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन हमको जरूरत पड़ती है। हम बिना ऑक्सीजन के कैसे रह सकते हैं? नॉट अ सिंगल डे वी कैन लिव, नॉट अ सिंगल डे, और नॉट यू कैन से नॉट इवन वी कैन सर्वाइव अ सेकेंड ऑल्सो। हम सेकेंड भी नहीं, एक सेकेंड भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स को एयर की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर नीडेड है, इनको भी जरूरत होती है। तो द थर्ड पॉइंट इज वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जिस तरह से सनलाइट, एयर हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वैसे ही वाटर चाहिए। If we can live without water, not a single day we can live without water. प्यास तो लगेगी, पानी हमको चाहिए, हमको नहीं, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको वाटर चाहिए। It is used for all household activities. As you know that water is essential for drinking and even for household activities like washing, cleaning. Without water, can we clean our home? Can we clean our dishes? No. Drinking as well as agriculture and industry. Agriculture, कृषि, खेती में क्या बिना पानी के कोई भी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं? नो, बिना प्लांट्स बिना वाटर के कैसे ग्रो करेगा? इसलिए ये एक एसेंशियल पार्ट है हर एक लिविंग चीज के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। इंडस्ट्रियल, जो मटेरियल्स, जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, बन रहा है, वो किसके थ्रू बन रहा है? वाटर के थ्रू बन रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो किसके थ्रू जनरेट हो रही है? वाटर के थ्रू जनरेट हो रही है। तो बिना वाटर के तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी नहीं, तो हमारी जो नीड है वो कैसे कंप्लीट होगी, वो कैसे फुलफिल होगी? नाउ द सेकंड पॉइंट मींस नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल, मिट्टी। इट इज अ बेस ऑन विच ऑल प्लांट्स ग्रो। ये वो बेसिक चीज है जिसमें प्लांट्स ग्रो करता है। जैसे प्लांट्स बिना वाटर के नहीं ग्रो करता है, वैसे वो बिना मिट्टी के भी कैसे ग्रो करेगा? बिना मिट्टी के हम प्लांट कहाँ लगाएंगे? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा तो हमको कहाँ से क्रॉप्स मिलेंगी, फसलें कहाँ से मिलेंगी, और फसल नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या? इसलिए ये सारी चीजें हमारी इम्पोर्टेंट बेसिस पे है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। Now I hope that you understood about the renewable resources. If you are getting any query, just ask to me in our next chapter. Now, non-renewable resources. What is non-renewable resources? It is just opposite of renewable resources. Renewable resources, जैसे मैंने बताया कि इसको again and again यूज कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड होता है। वैसे ही non-renewable resources ये लिमिट होता है। It means कि आपको इसको बहुत सेव करना है, इसको बहुत अच्छे से बिना उसको वेस्ट किए यूज करना है। लाइक दोज मटेरियल विच आर लिमिटेड ऑन अर्थ, ये वो मटेरियल है जो लिमिटेड है अर्थ के ऊपर, एंड वंस दे फिनिश दे कैन नॉट बी ग्रो बैक। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये दोबारा से हम नहीं इनको ले सकते, हमको नहीं मिल सकता ये नेचर की तरफ से, एंड इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू बी रिप्लेस। और अगर मिल भी गया तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा इसको टाइम पीरियड चाहिए वापस से इसको बनने में। दीज आर लिमिटेड, ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं। लाइक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल। ये सारी चीज़ें आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। इनको हमको बहुत ही ज़्यादा सेफली इसको यूज़ करना है, इनका वेस्ट नहीं हमको करना है। नीड्स फॉर कंजर्वेशन, इनको बचाने के लिए क्या ज़रूरतें हमको हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अगर हम अपने माइंड में ये स्टक कर लें कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, और उनको हमको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनके बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, तो ये वेस्ट होंगे ही नहीं। We are using our natural resources faster that they can be replaced. हम इनको ऐसे यूज करते हैं, इतनी फास्टली यूज करते हैं जैसे कि ये हमको इजीली मिल जाएंगे, बट हर एक मेरिट्स और डिमेरिट्स सारी होती हैं।
अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि जिससे आप उस चीज़ को जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हो तो वो जल्दी फिनिश हो जाएगी, और जब वो फिनिश हो जाएगी हम तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं जान पाते जब तक वो हमारे पास होती, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती तब हमको उसको सही वैल्यू हमको पता चलती है। Overuse of the fossil fuels to generate energy has resulted in pollution of the environment. Fossil fuels हम क्या करते हैं, कभी आपने पॉइंट आउट किया है जब कहीं पर कहीं व्हीकल्स रुकती है, क्रॉसिंग होता है, रेड लाइट जोन रेड लाइट होता है, तो वहाँ पर जब सारी व्हीकल्स स्टॉप होती हैं लाइक कार बाइक व्हाटएवर, वो सब क्या करती है, वो लोग ऑन रखते हैं अपने व्हीकल को, और क्या कर रहे हैं वो अपने फ्यूल्स को वेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि फ्यूल इजीली हमको मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये मिल तो जाएगा लेकिन इसको हमको टाइम लगेगा मिलने में, या फिर हो सकता है ना भी मिले। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी व्हीकल्स हमारी मशीन्स किससे चलेगी, हमारी इंडस्ट्री किससे रन करेगी, जो मशीन्स हमारी रन करती वो किससे रन करेंगे, पेट्रोल डीजल सब फिनिश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये चीज़ हम ह्यूमन बींग्स नहीं समझ पाते और उसको हम अननेसेसरी वेस्ट करते रहते हैं। अभी अगर हम ट्रैफिक पे रेड लाइट हो जाती है, अगर हम व्हीकल को स्टॉप करते तो बेटर देंगे कि हम उसको व्हीकल को वहीं पर रोक दें, उसको बंद कर दें, लेकिन नहीं, हम उसको ऑन रखते हैं। हमारा वो जो पार्ट है उसका व्हीकल का वो रन करता रहता है और वो फ्यूल को खर्च करता रहता है, वहीं पे फ्यूल हमारा वेस्ट होता रहता है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। जो नेचर ने हमको गिफ्ट किया है, जो नेचर ने हमको इजीली दिया है, उसको हम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड टिल up to these 2 points. Now I am going to tell you that what is the conservation of natural resources, how to save your natural resources. Conservation of natural resources means using natural resources carefully, sensibly and wisely. Natural resources का मतलब यही है कि हमको जो नेचर से मिला है उसको हम बहुत ही वाइजली, बहुत दिमाग से उस चीज़ को यूज़ करें, बहुत ही एक सही तरीके से यूज़ करें, उसको अननेसेसरी वेस्ट ना जाने दें। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की है, वो इजीली मिल रही है, उनको हम उनकी वैल्यू जानें। Some of the measures to conserve natural resources are keep the environment clean and green by planting trees. This point is very special point you can say that, because क्या कर रहे हैं हम, पेड़ों को हम काट रहे हैं, जंगलों को हम तेजी से काट रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और दूसरी ज़रूरत की चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं। लाइक हम अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो बेटर देने कि वो एक पेड़ काट रहा है तो हम उसकी जगह पर 10 पेड़ों का प्लांटेशन करें तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 10 पेड़ काट रहे हैं और एक को हम प्लांट कर रहे हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से हमको ये पॉइंट आउट करना चाहिए, हम तेजी से जंगलों को काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, अपने ये घर वगैरह डेवलप कर रहे हैं, सिटीज़ बहुत ज़्यादा आगे तक डेवलप करती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, तो ये गलत है। इससे हमारे जो वाइल्ड लाइफ है एक तो वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा कि वो उनका घर है, हम उनके घर को ख़त्म कर देंगे, उनके घर को फिनिश कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे घर तक आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ह्यूमन बीइंग्स ही उनको ही फिनिश करते हैं, जबकि हम डिपेंडेंट एनिमल्स पर भी है फुली, हर चीज़ को हम एनिमल से ही गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक प्लांट की वजह से, एक प्लांट के कट जाने से बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। So do not waste water. This is the main point. Whatever you are getting, that every time everyone is telling you that save single drop of water. हर एक बूंद पानी की बचाइए, क्योंकि पानी जो है वो हमारे लिए एक ज़रूरत की चीज़ है। बिना पानी के क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकती हम सर्वाइव बिना पानी के। बिना पानी के प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिना पानी के, बिना वाटर के एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ हमको नेचर से इजीली मिल रही है तो उसको हमें वेस्ट क्यों करना है? जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ हमें लगे कि हमको यहाँ यूज़ करना है
कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम बाय फॉलोइंग कार्टून्स। लाइक अभी आपने कभी सोचा है कि आप स्कूल आते हो तो कितनी सारी व्हीकल्स आती हैं, एक ही अगर 4 to 5 व्हीकल्स एक सिंगल बच्चे को अगर छोड़ने स्कूल आ रही है तो इससे क्या हो रहा है, पेट्रोलियम का वेस्ट, फ्यूल का वेस्ट। तो बेटर देन है अगर हम एक ऐसा पूल बना ले कार्टून का, लाइक एक ही एरिया की वन कार जाए, उसमें जितने भी वहाँ के सोसाइटी के स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे हैं वो एक साथ, अगर जब उनका वेन्यू एक जगह, वो एक ही जगह पे आना है तो वो एक साथ बैठ कर के भी तो आ सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है हमारी एक कि किस तरह से हम एक दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, हर का टाइम, हर किसी का टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ हमारा फ्यूल भी सेव होगा। तो कारपूल करके हम इस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। यूज सीएनजी इन योर व्हीकल। बिग सिटीज में अब क्या हो रहा है, सीएनजी का यूज हो रहा है, ऑटोज वगैरह में सीएनजी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉल्यूट नहीं करता एयर को। और कुछ हमको ट्राई यही करना चाहिए कि हम सीएनजी का यूज करें रादर देन अदर फ्यूल्स। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट our vegetation, our animals. It's depend on us. हम पर डिपेंड करता है कि हम ये सब चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, हम अपनी ज़रूरतों के लिए अननेसेसरी उनको स्पॉइल कर रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ स्पॉइल हम करते हैं, हमको उनकी जो स्पेसिस होती हैं, उनकी जो जातियाँ होती हैं, जब वो खतरे में आ जाती हैं, रेड जोन पे आ जाती हैं, तब हमको पता चलता है कि नहीं, हमको इसको प्रोटेक्ट करना। बट दैट द टाइम गेट्स वेरी एंड, इट इज एंडिंग पॉइंट, वो एंडिंग पॉइंट हो जाती है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होता है, आप तो कैसे सेव करोगे इसको। बेटर कहने कि हम जो चीज़ अभी हमको मिल रही है उसको हम अच्छे से सेव करें, उसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। जब तक हम किसी चीज़ की वैल्यू और किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते तब तक हम उसको अननेसेसरी यूज़ करते हैं। लेकिन बाद में जब वो चीज़ की कमी हो जाती है तो हम फिर बाद में हमें पता लगता है कि ये चीज़ हमारी कमी हो गई। लेकिन दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट यू हैव टू सेव एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव टू सेव योर नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपको गॉड गिफ्टेड है, जो नेचर से आपको मिला है गिफ्ट के रूप में, उसको आपको सेव करना है। So students, I hope that you have understood about this chapter, which is natural resources, about these 2 points, renewable resources and non-renewable resources, and I don't think so that you are having any problem in this chapter. So read your chapter. If you are getting any problem, point it down, write it down. We will discuss about this point or about this little summary, you can say, in another chapter. So till then,